ये नवम अध्याय 8 नंबर श्लोक रे भगवान कहते कौन ना समग्र दृश्य जगत मोर अधीनस्थ अटे। मोर इच्छा अनुजाई यह बारंबार सृष्टि हुए एवं मोर इच्छा अनुसार यह शेष ध्वंस हुए। कहते कि भगवान श्रीकृष्ण इच्छा अनुसार ये संसार रे सब किछि हो सृष्टि आ संहार पालन ये सब किछि तांकर इच्छा अनुसार हो। ये अष्टम नंबर श्लोक रे भगवान स्पष्ट भाव में कहते किंतु नवम नंबर श्लोक रे भगवान कहले कौन कहले ना जदियो मोर इच्छा अनुसार सब किछि सृष्टि होउची ध्वंस होउची किंतु हे धनंजय मोर ये समस्त कर्म मते बांधी पारंती नाही। मो बराबर अनासक्त थाए उदासीन भाव में अवस्थान करे। बड़ सुंदर कथा भगवान ये कहते जदियो सब किछि कर्म से करुछंती किंतु भगवान को तांकर कौनसी कर्म बांधी पारंती नाही। बड़ा आश्चर्य कथा नहीं। आप देखो विचार करंतु ए संसार रे आमे आम कथा आम जो चिंता करिया आम जेते सब कर्म करछे आमर सब कर्मर फल आम सब भोग करिया पड़छ कि नहीं भोग करिया पड़छ ना। आमर जेते सब पाप कर्म करछे पुण्य कर्म करछे जहा किछि बहुत अनादि काल रे आमर सब कर्म सब अछि तार फल स्वरूप आमको विभिन्न प्रकार दंड पनिशमेंट आउ विभिन्न प्रकार किए स्वर्ग को जाउछि किए विभिन्न प्रकार सब तार फल प्राप्ति हो। किंतु भगवान ये कहते कौन जदियो से सब प्रकार कर्म करुचंदी किंतु ये कहते कि समस्त कर्म मते बांधी पारंती नाही। कहीं बांधी पारंती नाही तार ताकू आउ टिके स्पष्ट भाव में बुझाउछंती ना मु बराबर अनासक्त थाए आउ उदासीन भाव में अवस्थान करे। कर्म कर्म क्या कह जाए क्रिया आउ कर्म दु प्रकार अच्छे। जान कर्म कर्म क्या कह जाए भगवान कहले समस्त कर्म जानिया पड़ो कर्मटा कौन। 3 प्रकार अच्छी कर्म आम आगु अच्छे आलोचना है कर्म अकर्म विकर्म 3 प्रकार अच्छे। कर्म माने कौन हाँ भौतिक कर्म भौतिक कर्म कहतु सकाम कर्म कहतु जहाँ किसी जो कर्मर बंधन अच्छी से सकाम कर्म बा कर्म कर्म माने आउ टे आम स्पष्ट भाव जब बुझा ताहले कहुई कौन ना जो कर्म रे आमर आसक्ति अच्छी बा जो कर्मटा कहुई मु कहुई आउ जो कि अहंकार अच्छी घरटा मु तैयारी कर चाकरी किए कर रोजगार किए कर सब कर्म कहुच कहीं से अहंकार रही आसक्ति रही कर्म बोली कहुच। किंतु जो कर्म रे अहंकार नहीं आसक्ति नहीं कहा आउ से कौन प्रकार माने जोड़ा कहुच कि गोटे उदाहरण देले बुझीपारे जिते सब पशु पक्षी मान अच्छा पशु पक्षी मान जो कर्म कर
ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଅଛି କି? ଆସକ୍ତି ଅଛି ନାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କର୍ମ କଲେ, ବାଘ ଗୋଟେ ମଣିଷଟାକୁ ଖାଇଦେବ, ବାଘକୁ ଜେଲ ହବ କି? ହବ? ତ କୁଆଡେ ଆସକ୍ତି ହବ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କେ କ୍ରିୟା, ତାଙ୍କର ସେଟା କ୍ରିୟାରେ ଯାଉଛି, କର୍ମରେ ଯାଉନି। ଏବେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଜଣକୁ ପିଟି ପକେଇବ, ତାକୁ ଜେଲ ହବ? ଜେଲ ହବ? ପାଗଳ, ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମୁଁ କରୁଛି, ତ ସେଟା କର୍ମରେ ପଡୁଛି, ଆଉ ତାର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସରକାର ଯୋଉ ଜେଲ କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନି, କୌଣସି ପାଗଳ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି କଣ, ଭଗବାନ ଏଠି ଯୋଉ କହିଲେ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ସେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ନା ତାଙ୍କର ସେଠି କୁହାଯାଇଛି କି ସେ ନିଜେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଏ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସଂହାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ ବାନ୍ଧି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିଛନ୍ତି କଣ ନା, ମୁଁ ବରାବର ଅନାସକ୍ତ ଥାଏ, ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି, ସଂସାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଝିଅଟି ପୁଅ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଝିଅ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହୁଛି, ବା ଆମର ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହୁଛି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ରହୁଛି, କଣ ପାଇଁ? ଆମକୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଆଶା ଥାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ସେଥିରୁ କିଛି ମିଳିବ ସେ ଆଶା ରଖେ ନାହିଁ। ଏବେ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାଟା ପଳେଇଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛେ, ହେଲେ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆତ୍ମାଟା ଥିବାରୁ ଆମେ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛେ। ଆତ୍ମାଟା ପଳେଇଲେ କଣ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିପାରିବାନି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ନା, ସେ ଆସକ୍ତିରେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କର୍ମବନ୍ଧକୁ ଲାଗୁନି। ସେ ଆସକ୍ତିଟା ଆମର ଅଛି, ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମବନ୍ଧକୁ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ କହିଲେ କଣ, ଉଦାସୀନ। ଉଦାସୀନର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମର ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଉଦାସୀନର ଅର୍ଥ କଣ? କଣ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ, ଉଦାସୀନ ମାନେ କଣ? ନା ନା, ସେ ନାହିଁ, ସେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଉଦାସୀନର ଆମେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଉଦାସୀନର ଅର୍ଥ କଣ ନା, ଆମକୁ କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମ ଘରର ପିଲାଟା ଏବେ ଏବେ ବାହାରେ କେତେ ଲୋକ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିବେ, ଆମେ ଯାଉଥିବା, ଉଦାସୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାସୀନ ପରେ ଉଦାସୀନ ଆଇଲା। ଉଦାସୀନର ଅର୍ଥ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ, କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଦେଖିବାନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାଟା ଯଦି କିଏ ବାଡ଼ଉଥିବ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବା କି, ଯାଇକି ଛଡେଇବା ନା। ହେଲେ ଆମର ସଂସାରରେ ଆମର ଯାହା ପ୍ରତି କିଛି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କେ ଯାହା ଲୋକ ବାଡାବାଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଡା ଗୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ।
सेटा को कहते उदासीन कौन बुझिपारे किंतु आम शास्त्र ना ना सिंपलिसिटी माने सरलता से हेले आम विचार करिया अरे उदासीन भगवान कहले उदासीन बत बोली कहले भगवान तो ए संसार सब किसी सृष्टि कर भगवान शास्त्र लिखाई गोटे गछर पत्र हली भगवान बिना इच्छा हली कि भगवान कि उदासीन हेले कहर अर्थ कौन भगवान ये संसार कार्यकलाप सहित किसी लिप्त नुह भगवान क्या द्वारा कर्म कर निजर शक्ति द्वारा कर्म कर भगवान निजे कौन कर भगवान सब सी आध्यात्मिक जगत में कर्म कर संसार से किसी कर्म करना आध्यात्मिक जगत में कौन से भगवान आध्यात्मिक जगत कौटे अच्छे न तद भाषयतु सूर्य न शशांक न पावक जत्कत्वाम न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मोर गोटे धाम कौटे से भगवान धाम ना कौन गोलक वृंदावन रे सब से कर्मरत कहीं भाविबा उचित नुहे जे भगवान किसी कर्म करना ना भगवान कर्म कर किंतु को कर्म कर आध्यात्मिक कर्म कर दिव्य कर्म आमर जो कर्म आम सब करे भौतिक कर्म ये आउटे उदासीन आउटे सुंदर भाव अर्थ बुझाई श्लोक जमी गोटे जज गोटे विचारपति सी सब विचार कर किए कर्म अनुसार फांसी पाउछ किए कर्म अनुसार जेल भोगुच किए कर्म अनुसार धन भी बहुत प्रचुर पाउछ किंतु जज को कौन लेना देना किसी लेना देना ना जमी बैंक रे कैशियर था आम एत टंका नहीं जमा कर बेले बेले बहुत बहुत टंका से भीतर बाहर कर दे कैशियर कि संपर्क बेसी टंका आसू कि न था कौन संपर्क ता कर्म से कर तार कौन से लोभ अच्छे ना आसक्ति अच्छे से कहते उदासीन बुझिपारे उदासीन अर्थ बैंक रे जदियो बहुत बहुत टंका आसूची किंतु कैशियर को किसी लिंक ना जो कर्मचारी जो अच्छा सी जी दरमा देवा कथा से ही पाइब सी टंका जहाँ बेसी बेसी बैंक जमा है सी घर धरी जापर बुझिपारे तो से कहते उदासीन से भगवान कहते जदियो ये संसार सब कर्म मु करुच्ची मो द्वारा ही हूँ किंतु मोर से कौन प्रकार आसक्ति ना मु उदासीन बत जदियो भगवान कहते मु उदासीन नुह कि उदासीन बत अर्थ कौन ना उदासीन परी तो आमको ए श्लोक रे शिक्षा जिनस बहुत अच्छे कौन ना भगवान जमी संसार रे कौन सी प्रकार आसक्ति नाहंती आ संसार सब उदासीन पड़ी कर्म करमि आमको ए संसार रहीकि आमर आसक्तिटा भगवान ए संसार प्रति आसक्ति नाही सेपरि आमर मध्य ए संसार प्रति कौन से आसक्ति रखा उचित कहीं ना कहुई कौन ना आसक्ति ही दुखर मूल कारण बुझिले दुख ए संसार कौन पे आसुची ना आसक्ति पे आसुची भगवान ए श्लोक शिक्षा दूसरी कौन संसार कौन प्रकार आसक्ति रखा हेनी कहीं रखारे आप मन में प्रश्न आस संसार प्रति आसक्ति कहीं रखारे ना आसक्ति जदि आम रखा प्रथम आमर नष्ट हम कौन आम कर्म बंधन लगे कर्म बंधन बुझुन तो आम कर्म फल भोग करिया पड़े संसार आसक्ति रखा कर्म बंधन लागू हम आमको फास्ट सेकेंड जदि आम आसक्ति रखा सेकेंड हूँ दुख पाए है तीन आमको किसी मिल ना आम ए संसार जिते सब कर्म करें जेकोसी किए शरीर कर्म कर धन पाया कर्म कर
विभिन्न प्रकार लोभ घर पाइबा कर्म कर विभिन्न कर्म कर जिनस स्थायी कहले को जिनस स्थायी भगवान श्रीकृष्ण निजे कहले गीतारे अशाश्वतम दुखालय संसार जिते सब आमर जिनस आम देखुचे सब किसी अस्थायी धन कहतु घर कहतु सुना कहतु जहाँ किसी सब अस्थायी आम निजे अस्थायी आम निजे आसचे पड़ा अशाश्वतम और दुखालय दुखर घर ये संसार किए सुखरे रही पार ना तेणु ये भगवान कहते कौन ना जदि आम आसक्ति करवा प्रथम मैं कहली कौन दुख पाइबा पक्का द्वितीय कहली कौन ना कर्म बंधन लागू हो पक्का कर्म बंधन लागू हो कर्म बंधन आम कहली भले ना आमको कर्म फल भोगे पड़े पुणी ये संसार को आसिया पड़ो कर्म फल भोग करिया तृतीय कहली कौन ना आमको मिलबनी किसी जीरो मिल किसी मिलबनी कौन मिल आसक्ति हेले जमी आमर सब खरा दिने सब आखु जगह सब पेड़ा हो आखु पेड़ा हो आखु पेड़ी रखुच्च आउ थे शुखला आखुटा को आम जो आउ थे चबिया कौन रस बाहर बाहर से गोटे थर तो पेड़ा हो दुथर ही पेड़ा हो आउ थे चबिया कि पेड़ा कौन रस कि रस बाहर आमको कौन से रिजल्ट मिलना आसक्ति द्वारा किंतु भगवान कहते कौन आसक्ति आमको दरकार किंतु कौन प्रति आसक्ति दरकार ना भगवान कहते मो प्रति आसक्ति आसक्ति करवा आम क्या प्रति करवा आम भगवान श्रीकृष्ण प्रति कर जो आमर भक्ति आम आगू जापर मो प्रति भगवान कहते मो प्रति आसक्ति कर आसक्ति छाड़े भगवान कहना से आसक्ति को चेंज कर भगवान कहते कि चेंज करिया ना भगवान प्रति नाम प्रति भागवत प्रति भक्त मान प्रति ये संसार जो आम भक्ति आगु 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 जापर से जिनस प्रति आसक्ति करा पड़े छाड़िया कह छाड़िया कथि कहुई ये भौतिक वस्तु प्रति छाड़िया कहुई भगवान जमी संसार भौतिक वस्तु प्रति आसक्ति छाड़ी कौन से आसक्ति ना सेमती आमर ये संसार भौतिक वस्तु प्रति आसक्ति त्याग कर भगवान श्रीकृष्ण भक्ति प्रति आसक्ति बढ़िया पड़े से आसक्ति बढ़े उदासीन रहा पड़े उदासीन बट कहुई आम परिवार प्रति भगवान जमी संसार प्रति कौन सी उदासीन संसार प्रति जहाँ हो जाऊ किसी लेने संसार सृष्टि होची ध्वंस होची सब किसी होची भगवान से लिप्त नुहत भगवान द्वारा होची कि लिप्त नुहत सेमती आम आम कि उदासीन भाव रहा ये संसार सब किसी आम करवा सब किसी करिया आम उदासीन माने आम घर द्वार छाड़देवा चाकरी बाकरी छाड़देवा व्यवसाय छाड़देवा सब पिला को छाड़ पलैया पड़ू कहुई कि ना सब किसी करवा ओडा छाड़िया ना किंतु उदासीन बर्त कहुई उदासीन बर्त माने कौन प्रकार आसक्ति ना सब चलती कि आसक्ति कौट श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण पाखे आसक्ति रही सब जदि करवा आम भगवान कर्म को आम अनुसरण करवा ताहले ये कहुई कि जीवगण से विगत जन्मर कर्म अनुसार विभिन्न जीव जोनि ग्रहण कर विभिन्न शरीर प्राप्त होती एवं भगवान से कौन प्रकार हस्तक्षेप करती ना आमर मध्य संसार कौन प्रकार जो कर्म फल आम बांधे ना आम जीवगण आम मान जदि भगवान कथा न शुणिक आम निज निज कर्म करवा ताहले आमको निज निज कर्म अनुसार आमको कर्म करा पड़ो किंतु भगवान कथा शुणिक आम जो संसार प्रति कौन से आसक्ति रखानी भगवान जी उदासीन रोचे उदासीन मत रहीकि आम भगवत कर्म कर आमको आउ कर्म फल बांधे ना
भगवान जी उदासीन भाव रोचंदी आनंद रोचंदी भगवत कर्म करी भगवान राज्य में सब कर्म कर खाली बसुना से देखो आप दशम अध्याय देखु भगवान सबकि कर्म कर निजे गृहस्थ होती गृहस्थ मान कि कर्म करा पड़े से निजे होती दशम स्कंद जी पढ़ भागवत भगवान लीला आम श्रीकृष्ण बही गोटे अच्छी से बही सब वर्णना कराई भगवान निजे सब ब्रह्म मुहूर्त उठुले तीनटा 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 उठुले जदियो तांकर राणी माने रुक्मिणी सत्यभामा जते सब राणी माने थिले से माने कहीं भी चाहू नथिले कि भगवान शीघ्र उठतु कि भगवान उठ पड़ते उठ पड़ी कौन करते ध्यान करते कर्म करते यज्ञ करते दान करते सबकि कर्म कर संसार से शिखा कि कौन जदियो मोर ए संसार कौन से कर्म नाही जय श्री राधा राधाकांत भगवान की जदियो भगवान ए संसार कौन से कर्म नाही भगवान को कौन कर्म करे दरकार ना किंतु से कर्म कर कौन मैं कर लोक शिक्षा पाए सी जदि बस पड़े लोक मैंने भावे भगवान तो किसी कर्म करना आम कहीं कर तो से भगवान निजे कर्म कर शिखा तो भगवान श्रीकृष्ण सबू कर्म कर गृहस्थ मान सब निजे गृहस्थ हो शिखी तो ये श्लोक आम ये शिखा कौन ना भगवान जमी अनासक्त भाव रोचे आ उदासीन बत भाव रोचे सेमती आम जब भली अनासक्त आ उदासीन बत भाव रही कर्म करवा आ भगवत कर्म भगवान जमी सब भगवत कर्म कर भगवान राज्य सब आध्यात्मिक कर्म लत रोचे सांग भक्त मान साथी सब प्रेम रे आदान प्रदान कर भगवान भक्त मान साथी से लीला कर भगवान राज्य रे सेमती आम भगवान भक्ति सब बुड़ी रहा आम ये संसार आसक्ति दूर जदि आम ये संसार कर्म लोक मैंने कर आम भी सेम करवा आसक्ति केवे जीवन ना आसक्ति भगवान कहते हैं आसक्ति को ट्रांसफर कर ट्रांसफर ट्रांसफर माने भगवान प्रति कर संसार प्रति कर संसार प्रति कले ही तो आम तो पाँच दुख ठीक अच्छे हरे कृष्ण।